Hello, I am Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science, working as reader in Belpad Junior College, invites +2 second year political science students to the first chapter of the second unit. And in this first chapter of the second unit, we have mainly three topics: features of Indian federalism, center-state relations, and trends of Indian federalism. Topics are three, and in this video we will discuss only short notes as many as 15 and objectives as many as 30. So in this video we will only discuss short notes and objective questions of the first chapter of the second unit. Okay, very good. ताले आज वीडियो रे आमे सेकेंड यूनिट रो प्रथम विषय जोटारे कि मुख्यतः तीनोटी विषय रही अछि: भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य, केंद्र राज्य संपर्क एवं भारतीय संघीय व्यवस्थार गति। एही प्रथम विषय केवल शॉर्ट नोट्स एवं ऑब्जेक्टिव्स आमे डिस्कस करिबा। ओके, वेरी गुड, विल स्टार्ट। सो द फर्स्ट शॉर्ट नोट विल डिस्कस टुडे: इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। भारत एक आंशिक संघीय राष्ट्र। तार अर्थ कौन? भारत एक आंशिक संघीय राष्ट्र यह उल्लेख करिसंती केसी हुएर बा केनिथ क्लिंटन हुएर, जे कि ऑस्ट्रेलिया महादेशर। केसी हुएर कहिसंती भारत एक पूर्ण संघीय राष्ट्र नुहे, कारण एक पूर्ण संघीय राष्ट्र से राष्ट्र को कहा जाए जोटार कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार समान क्षमता थाए, समान सम्मान थाए, एवं केंद्र सरकार पाई गोटे संविधान एवं राज्य सरकार पाई अन्य एक संविधान रही थाए। किंतु से कहिसंती भारत रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार समान क्षमता नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार गुड़िक अपेक्षा अधिक क्षमता रही अछि, कारण केंद्र तालिका रे 19 प्रकार क्षमता रही स्थले राज्य तालिका रे अछि मात्र 61। गुरुत्वपूर्ण क्षमता गुड़िक केंद्र सरकार को प्रदान करा जाय अछि, सामान्य गुरुत्वपूर्ण क्षमता गुड़िक राज्य सरकार को प्रदान करा जाय अछि। ता सहित जुग्म तालिका रे उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आईन प्रणयन करि थांती, किंतु यदि उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जुग्म तालिका रे आईन प्रणयन करंती ताहले केंद्र आईन कार्यकारी होई थाए, राज्य आईन अग्राह्य बा रद्द गत नुहे रद्द हो जाई थाए। यह व्यतीत धारा 3 अनुसार केंद्र सरकार चाहिए राज्य गुड़िकर नाम परिवर्तन करि परिबे, सेमानंकर अंचल को संकुचित करि परिबे एवं दुईटा बा तीनोटी राज्य को मिसाई एक नूतन राज्य सृष्टि करि परिबे। या सहित भारत रे एकमात्र संविधान रही अछि जार अधीन रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार करूचंती कार्य। तेणु भारत प्रकृत रे एक संघीय राष्ट्र नुहे, यह एक आंशिक संघीय राष्ट्र। यह उल्लेख करचंती केसी हुए। इंग्लिश रे को इंडिया इज ए क्वासी जुडिशियल क्वासी इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, नॉट जुडिशियल। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल, FEDERAL. India is a quasi-federal state. It is told by Casey Ware or Kenneth
Clinton who belongs to Australia. According to Casey, India is not a full-fledged federal state. It is a half federal state or it is a quasi-federal state. It is because he told or he narrated that in a federal state, central government and state government will have equal power, equal status, and there must be two constitutions, one for the central government, other one is for the state government. But in India, just reverse is found. Central government is more powerful than the state government. Central government has 99 type of powers, while state government has 61 type of powers. Again, in the concurrent list, when both of them will make law, law of central government will prevail over the state law. Even under Article 3, the central government has the power to squeeze the area of a state. It can enlarge the area of the state. It can change the name of a state. It can merge two or more states into one state. It shows how central government is more powerful than the state. Again, under one constitution, central government and state government work or function or perform their duty. So India is not a full-fledged federal state, rather it is a quasi-federal state told by K.C. Webb. Okay, very good. The second sub question is bicameral legislature in India. Bicameral legislature in India, it means in India there is bicameralism. Bicameralism means a legislature which consists of or which possesses two chambers. One in the upper chamber, other one in the lower chamber. Any legislature which has two chambers, it is the bicameral one. But in India, there is bicameralism because the central legislature of India, which is known as Parliament, it has two houses, two chambers. Its upper chamber is Rajya Sabha, lower chamber is Lok Sabha. In the similar manner, in Britain, the Parliament which Britain has, it is also two chambers. Upper house is Rajya Sabha, lower house is, upper house is House of Lords, lower house is House of Commons. Again in America, the central legislature which is known as Congress, its upper house is Senate, lower house is House of Representatives. So, bicameral legislature is a legislature where the legislature has two chambers or two houses. It is observed in India. Okay? Very good. Speaking Odia, this Sadhana Vyavasthapika says Vyavasthapika kuajaye, जो व्यवस्थापिकारे दुईटी थाए सदन बा कक्ष जो सदन रो एक ऊपर कक्ष थाए एवं निम्न कक्ष थाए ताहा कुआ जाय सदन जेपरि कि भारत रो केंद्र व्यवस्थापिका ओडिया रो कुआ जाय संसद इंग्रजी कुआ जाय पार्लियामेंट तार दुईटी कक्ष रही अछि आर ऊपर कक्ष को कुआ जाय राज्यसभा निम्न कक्ष को कुआ जाय लोकसभा ठीक सेमते ब्रिटेन रे मध्य तार केंद्र व्यवस्थापिका ऊपर कक्ष हैला हाउस ऑफ लॉर्ड्स निम्न कक्ष हैला हाउस ऑफ कॉमन्स अमेरिका रो केंद्र व्यवस्थापिका जहा कि कांग्रेस कुआ जाय तार मध्य ऊपर सदन कुआ जाय सीनेट निम्न सदन कुआ जाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तेणु दी सदन व्यवस्थापिका से व्यवस्थापिका कुआ जाय जे व्यवस्थापिका रे दुईटी कक्ष थाए भारत रे मध्य दी सदन व्यवस्थापिका रही अछि ओके वेरी गुड नंबर 3 rigid constitution India rigid constitution India भारत रे अनमनीय संविधान रही अछि अनमनीय संविधान से संविधान को कहा जाए जो संविधान को परिवर्तन करिवा संशोधन करिवा दुसाध्य अटे आ कष्टकर अटे कष्टकर नहीं कष्टकर अटे भारतीय संविधान को मध्य परिवर्तन करिवा कष्टकर उदाहरण स्वरूप भारत संविधान रे केतेक विषय रही अछि जाको परिवर्तन करे निमंते संसदर 2/3 सभ्यंकर समर्थन जरूरी
जरूरी नहीं जरूरी एवं भारतीय संविधान रे एपरि केतेक विषय रही जहाँ को परिवर्तन करने निमंते संसदर 2/3 सभ्यंकर समर्थन सहित अर्धाधिक राज्यर दरकार अनुमोदन। तेणु भारतीय संविधान को परिवर्तन करने कष्टकर होइथिबारु भारतीय संविधान मध्य अनमन संविधान यही अनमन संविधान व्यवस्था आम ग्रहण करियछु अमेरिका अमेरिका नहीं अमेरिका ओके इंग्लिश रे को Indian constitution is a rigid constitution. A rigid constitution is one which is difficult to change, difficult to alter, difficult to amend. A constitution which is very difficult to change, it is known as rigid constitution, and Indian constitution is also rigid constitution. This rigid constitution we have borrowed from America, not America. Indian constitution is rigid in nature because in the Indian constitution there are some provisions in order to change them support of 2/3 members of parliament is required. Again in Indian constitution there are some provisions if you want to change it, they are sensitive provisions. Support of 2/3 members of parliament plus ratification of 1/2 of state is required, is necessary, is sine qua non. So Indian constitution is rigid in nature. Now 4, फेडरल जुडिशियरी इन इंडिया भारतीय न्याय व्यवस्था रे संघीय न्याय व्यवस्था रही अछि। संघीय न्यायालय से न्यायालय कहा जाए जो न्यायालय कार्य है सरकार गुड़िक मध्य जो विवाद बा कलह बा मनांतर बा मतांतर होता है ताहाको करिबा समाधान। तेणु संघीय न्यायालय से न्यायालय कहा जाए जो न्यायालय कार्य है सरकार गुड़िक मध्य होता विवाद को समाधान करबा ताको संघीय न्यायालय कहा जाए। एवं भारत रे मध्य संघीय न्यायालय व्यवस्था रही अछि। भारत उच्चतम न्यायालय इंग्राजी को सुप्रीम कोर्ट तार कार्य है केवल सरकार गुड़िक मध्य विवाद को करवा समाधान। धारा 131 अनुसार भारतीय उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय भाव कार्य करे। जो समय केंद्र सरकार राज्य सरकार बा राज्य सरकार गुड़िक मध्य एक पक्षरे केंद्र सरकार अनेक राज्य सरकार अन्य पक्षरे अनेक राज्य सरकार मध्य हुए विवाद हुए मतांतर संघीय न्यायालय भारतर 131 धारा अनुसार समाधान। ओके वेरी गुड इंग्लिश रे को फेडरल जुडिशियल इंडिया इन इंडिया फेडरल जुडिशियल सिस्टम इज फाउंड। ए फेडरल जुडिशियरी इज वन whose duty or whose responsibility is to solve disputes, skirmishes, tussles among governments or between governments. Any judiciary which has taken the responsibility to solve disputes among governments or between governments, it is known as federal judiciary. And Indian Supreme Court is the federal judiciary in India. Under Article 131 of the Constitution of India, it solves disputes between governments or among governments. Whenever there will be disputes between state governments or between central government, state governments, or central government in one hand, central government and some states in one hand and some states on the other, it is the duty of Supreme Court of India to patch off those differences, to solve those differences. This is the federal judiciary in India. Okay, very good. Point 4, unionist. केंद्र तालिका। केंद्र तालिकार अर्थ है यही तालिका रे केंद्र तालिकार अर्थ है यही तालिका रे से विषय गुड़िक रही थाए जहा कि समग्र देश पई गुरुत्वपूर्ण। केंद्र तालिका रे से विषय गुड़िक रही थाए जहा कि समग्र देश पई गुरुत्वपूर्ण। एवं भारतीय केंद्र व्यवस्थापिका रे रही अछि 99 प्रकार क्षमता किंतु 1935 रे जो आमर आईन रही से समय केंद्र तालिका 59 प्रकार क्षमता। तेणु जो क्षमता गुड़िक समग्र देश जरूरी ता केंद्र तालिका रही था। एवं यही तालिका रे धारा 246,
ब्रैकेट रे 1 अनुसार केंद्र सरकार ही करिथांती आईन। जल बाहिनी, स्थल बाहिनी, आकाश बाहिनी, रेलवाई, दूरसंचार, जोगाजोग, वैदेशिक विभाग जहाँ देश पाई जरूरी यह रही है कौन तालिका इंग्रजी को यूनियन लिस्ट इज ए लिस्ट where 99 types of powers are included. Which powers are included from the nation's point of view are included in the union list. But in the government of India 1935, in the union list or in the federal list, there were 59 types of powers. But now in the present constitution, in the union list, 99 types of powers are found. Those powers which are important from the nation's point of view, like railway, telecommunication, postal, army, navy, defense, atomic energy, etc. So those matters which are important from the nation's point of view are included in the union list. And under Article 246 Clause 1, central government, CEG, central government, CEG can make law in the union list. State government cannot make law. Number 6, राज्य तालिका। राज्य तालिका रे से विषय गुड़िक रही था जहाँ कि आंचलिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण एवं यही तालिका रे धारा 246 ब्रैकेट रे 3 अनुसार राज्य सरकार आईन प्रणयन करिथांती। तेणु जो विषय गुड़िक आंचलिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण से विषय गुड़िक राज्य तालिका रही था, यथा जमी, चाष, जंगल, विद्युत, जेल प्रभृति राज्य तालिका रही था एवं राज्य तालिका रे राज्य सरकार आईन करथांती। किंतु केतेक क्षेत्र रे राज्य तालिका रे मध्य सीजी केंद्र सरकार आईन करथांती। से क्षेत्र गुडे कोन जदि कोनोसी राज्य रे जरूरी अवस्था जारी होई अछि से राज्य रे केंद्र सरकार आईन प्रणयन करथांती। धारा 250 अनुसार बा धारा 249 अनुसार जदि राज्यसभा केंद्र सरकार को अनुरोध करिथांती राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करिया पई देशर हित पई ताले केंद्र सरकार बा केंद्र संसद राज्य तालिका आईन करथांती। अतिरिक्त धारा 249 अनुसार जदि राज्यसभा केंद्र संसद को अनुरोध करिथाय जे देशर हित पई तमे राज्य तालिका आईन करो ताले केंद्र संसद राज्य तालिका आईन करिवो नचेत नाही। पुनर्बार धारा 253 अनुसार कौन आंतर्जातिक राजीनामा को कार्यकारी करिया पई सीजी केंद्र सरकार राज्य तालिका रे करथांती आईन। ओके, इंग्लिश को स्टेट लिस्ट इज ए लिस्ट where those matters are included, those matters are enumerated which are important from the regional point of view, like police, prison, electricity, forest. So in the state list only state government can make law, but under some circumstances in the state list CG union government can also make law. What are these circumstances? Under Article 250, if in any state there is emergency, central government will make law in the state list. If under 249, if Rajya Sabha will request the parliament to make law in the state list for the national interest, for the interest of the country, then central legislatures or parliament will make law in the state list. And to implement any international agreement, parliament will make law in the state list. Okay, again under Article 252, if 2 or more states will request parliament to make law for them, they are not able, they are incapable, then central government will make law in the state list. Very good. Then number 3, जुग्म तालिका कौन लिस्ट। जुग्म तालिकार अर्थ है यही तालिका रे से विषय गुड़िक रही था जहाँ कि देश भी गुरुत्वपूर्ण एवं आंचलिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। जुग्म तालिका रे से विषय गुड़िक रही था जहाँ देश भी गुरुत्वपूर्ण एवं आंचलिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण, देश भी गुरुत्वपूर्ण एवं आंचलिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण, तथा बाहागर, छाड़पत्र, फौजदारी मोकदमा, देवानी मोकदमा, शिक्षा प्रवृत्ति जुग्म तालिका रही एवं ये जुग्म तालिका रे उभय सीजी केंद्र सरकार एवं एसजी राज्य सरकार आईन प्रणयन करथांती। किंतु जदि
उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जुग्म तालिका रे आईन प्रणयन करथन सीएल कॉन्फ्रेंस लिस्ट तेबे केंद्र तालिका केंद्र रा आईन कार्यकारी होइथाय राज्य रा आईन कटि जाइथाय किंतु जदि जुग्म तालिका रे राज्य सरकार राष्ट्रपति को पचारि के आईन करचंती तापर केंद्र सरकार जुग्म तालिका रे आईन कले ताले केंद्र राज्य रा आईन रहिथाय केंद्र रा आईन कटि जाइथाय तो इंग्लिश को in the concurrent list those matters are found which are important from the nation's point of view as well as the regional point of view. Marriage and divorce, civil proceedings, criminal proceedings, etc. are included in the concurrent list. And in the concurrent list, both the CG central government and SG state government will make law in the concurrent list. If both of them will make law in the concurrent list, law of the CG central government will prevail over the state law. If the state government has obtained the permission of president, after that it will make law in the concurrent list, and then central government will make law in the concurrent list. Law of the state government will prevail over the central law. Very good. Number 8. Grounds on which union makes law in the state list. क्यों परिस्थिति रे केंद्र सरकार राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करिथान राज्य तालिका रे राज्य सरकार आईन प्रणयन करिबा कथा किंतु केतेक परिस्थिति रे केंद्र सरकार बा केंद्र संसद राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करिथान से क्षेत्र गुड़े कौन धारा 250 अनुसार जदि कौन राज्य रे जरूरी अवस्था जारी होता है ताहले केंद्र संसद राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करिथांती धारा 249 अनुसार जदि केंद्र संसद को राज्यसभा अनुरोध करिवो 2/3 सभ्यंकर समर्थन रे को प्रस्ताव गृहीत करी जे देशर हित पई राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करा जाऊ ताले केंद्र संसद देशर हित पई राज्य तालिका रे आईन प्रणयन करिवो या सहित धारा 253 अनुसार कौन आंतर्जातिक राजीनामा कार्यकारी करने केंद्र संसद राज्य तालिका आईन प्रणयन करते सहित धारा 252 अनुसार जदि अनेक राज्य केंद्र सरकार को अनुरोध करेंगे प्रार्थना करेंगे कि आम आईन प्रणयन कर दियो ताले केंद्र संसद राज्य तालिका प्रणयन करते आईन इंग्लिश रे कह grounds on which union make law in the state list. In the state list, only the state government can make law. But under some grounds, under some occasions, central government or central legislature will make law in the state list. What are the occasions are? Under Article 250, if in any state there is emergency, it may be due to Article 352 national emergency, or it may be under Article 356 state emergency or crisis rule, central government will make law in the state list. Again, 249, if Rajya Sabha will request the parliament to make law in the concurrent list, if the Rajya Sabha will request the parliament to make law in the state list for the national interest, then parliament will make law in the state list. Then, if under Article 253, if to implement any international agreement, central legislature will make law in the state list. Again, under Article 252, if 2 or more states will request the parliament, will pray to the parliament that they are unable, they are not in a condition to make law in the state list, then central government will make law in the state list. Okay, very good. Then interstate river council, अंतरराज्य नदी परिषद धारा 262 अनुसार धारा 262 अनुसार जदि कौनसी नदी 2 बा ततोधिक राज्य मध्य प्रभावित एवं से नदीर जल बंटन एवं जल नियंत्रण क्षेत्र में राज्य गुड़िक मध्य विवाद हुए तेबे धारा 262 अनुसार संसद
अंतराज्य नदी परिषद गठन करिवो। ओके, जेपरि कि महानदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा दे प्रभावित, नर्मदा महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश दे प्रभावित, तेणु अंतराज्य नदी क्षेत्र में जदि कौन विवाद हुए ताहले केंद्र संसद अंतराज्य नदी परिषद गठन करिवो धारा 262 अनुसार एवं एई नदी परिषद से विवाद करिवो समाधान एवं एई परिप्रेक्षी रे उच्चतम न्यायालय बा कोनोसी अदालत एई क्षेत्र रे तदंत करि परिबे नाही। इंग्लिश रे को interstate river council means whenever there will be disputes, whenever there will be tussles, whenever there will be any differences among states or between states on interstate river distribution of water and sharing of water or control of water, Parliament will form interstate river council under Article 262, and whatever decision interstate river council will say, it will prevail. Neither Supreme Court or any tribunal will solve this dispute. Interstate council, अंतरराज्य नदी परिषद धारा 2 अंतरराज्य परिषद धारा 263 यदि दुई बा अनेक राज्य मध्य रे कोनोसी कारणर विवाद हुए तेबे राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद गठन करिथंती धारा 263 अनुसार। एही अंतरराज्य परिषद राज्य मानक मध्य विवाद को समाधान करी निजर भूमिका निर्वाह करिथाय। जेपरि कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक मध्य बेलगांव नामक स्थान को नहीं कलह देखा दउछ। तेणु कोनोसी अंचल पाई दुई बा ततोधिक राज्य मध्य यदि विवाद हुए राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद तैयारी करती। ये अंतरराज्य परिषद से विवाद कर तदंत एवं ताको करिथाय समाधान, समाधान नहीं समाधान। ओके, वेरी गुड। देन in English, whenever there will be disputes among states or between states, then President will form interstate council under Article 263. For example, for Belgaum, there is a dispute between Maharashtra and Karnataka. So whenever there will be dispute between or among states, President will form interstate council under Article 263. The council will investigate the matter, will look after the matter and solve the matter. Neither Supreme Court or any other tribunal can come in this field to solve the matter. Then, power of Parliament to create all India services. सर्व भारतीय सेवा अधिकारी पद सृष्टि पाई संसदर अधिकार अर्थात सर्व भारतीय सेवा अधिकारी पद रे जो माने प्रतिष्ठित तथा आईएएस आईपीएस ऑफिसर सेमानंकर पद यदि सृष्टि करबा को हेबो केवल राज्यसभा यदि संसद को कहबो 2/3 सभ्यंकर समर्थन एक प्रस्ताव गृहीत करी ताले ए सर्व भारतीय सेवा अधिकारी पद गुडी को वृद्धि हबो धारा 312 अनुसार अतिर कहूची धारा 312 अनुसार जदि राज्यसभा 2/3 सभ्यंकर समर्थन एक प्रस्ताव गृहीत करी केंद्र संसद को अनुरोध करे जे ए सर्व भारतीय सेवा अधिकारी पद गुडी को सृष्टि करा जाओ ताहले केंद्र संसद ये सर्व भारतीय सेवा अधिकारी पद गुडी को सृष्टि करि थांती। ये सर्व भारतीय सेवा अधिकारी माने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होई थांती राज्य रे कार्य करि थांती किंतु से मानकु निमंत्रण नोए से मानकु नियंत्रण करिताए केंद्र सरकार एवं राज्य गुडी को से मानक विरुद्ध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबे नाही। Then meaning is power of parliament to create all the services means in India there are some officers who are known as all India services. They are very important. So if
the posts of all India services will have to be created. Only Parliament will create if it will be requested by Rajya Sabha by the support of 2/3 of its members. In other words, under Article 312, if Rajya Sabha, by passing a resolution supported by 2/3 of its members, President voting, request the Parliament to create one or more all India services, then Parliament can create one or more all India services. And the people of all India services, they are appointed by central government, but they will work in the state government. Their payment will be given by the state government, but state government cannot take any actions against them because they belong to central government. Very good. Finance Commission, आर्थिक आयोग. आर्थिक आयोग अर्थ है प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे धारा 280 ब्रैकेट रे 1 अनुसार राष्ट्रपति अर्थ आयोग प्रतिष्ठा करिता जार सभ्य संख्या 5 जन अध्यक्ष 4 जन सदस्य एवं 5 जन यार सदस्य एमान कार्य हला कार्यकाल 5 वर्ष ताले धारा 280 अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष रे राज्यसभा अर्थ आयोग गठन करिथांती एवं ए अर्थ आयोग रो कार्यकाल 5 वर्ष सभ्य संख्या मध्य 5 जन अध्यक्ष 4 जन सदस्य यार कार्य हला संबल बंटन क्षेत्र रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार गुड़िक मध्य जो विवाद हुए प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार राज्य गुड़िक जो अनुदान प्रदान कर संपर्क में समीक्षा करने एवं राष्ट्रपति को निजर विवरणी को करने प्रदान. इंग्लिश को फाइनेंस कमिशन मीन्स इन एवरी 5 years द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द फाइनेंस कमिशन. Its term is 5 years. It consists of 5 members, 1 chairman, 4 members. The function of the Finance Commission is to study the distribution of resources between central government and state government and the grants in aids policy of the central government. After analyzing these matters, it gives a report to the president and the president on the basis of it take actions. Okay? Very good. आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक कार्य धारा 148 उपधारा 1 अनुसार राष्ट्रपति जने आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक करिथांते नियुक्ति. तांकर कार्य हला देशर आय रक्षा करिबा एवं केंद्र आय हिसाब करी धारा 151 ब्रैकेट 1 अनुसार राष्ट्रपति को एक विवरणी दे थांती एवं राष्ट्रपति से विवरणी को संसद रे उपस्थापन करि थांती एवं धारा 151 ब्रैकेट 2 अनुसार प्रत्येक राज्यर आय हिसाब करी सेही राज्यर राज्यपाल को एक विवरणी दे थांती एवं सेही राज्यर राज्यपाल से विवरणी करि थांती उपस्थापित राज्य व्यवस्थापिका. ओके इंग्लिश को the function of the Comptroller and Auditor General of India is to maintain the accounts of central government, state government, as well as of the country. Under Article 148, President appoints Comptroller and Auditor General of India. He maintains the accounts of the country, and after drawing the accounts of the union government, he gives a copy of it to the President, and the President submits it to the Parliament. Under Article 151 clause 1, and under Article 151 clause 2, he prepares the accounts of the state government and gives a copy of it to the governor of the state, who places it in the state legislature. Okay, very good. What is grants in aids? आर्थिक अनुदान. आर्थिक अनुदान अर्थ है प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार राज्य गुड़ी को किसी अनुदान दे था. कारण केंद्र सरकार पाखरे थाए अजस्र क्षमता अजस्र अर्थ राज्य सरकार निकट रही है सीमित अर्थ. ये सीमित अर्थ गुड़िक द्वारा राज्य सरकार गुड़िक प्रगति कर पारती ना. तेणु प्रत्येक वर्ष धारा 275 अनुसार केंद्र सरकार राज्य गुड़िक किसी आर्थिक अनुदान प्रदान करि थांती जहाद्वारा कि समाने करि थांती विकास.
Tell me in English. Under Article 275, every year the central government provides grants and aid to the state governments. Because central government has more money. State government do not have that much money by which they can make progress. So every year central government gives some grants and aid to the states. Okay? Otherwise they cannot make development. It gives more grants to weaker states, a less grants to richer states. Last point, उदारवाद. उदारवाद बा लिबरलिज्म. उदारवाद कहाँ कुआ जाए? उदारवाद अर्थ है विभिन्न क्षेत्र रे थिबा कठोर कटकणा को विभिन्न क्षेत्र रे थिबा कठोर कटकणा बा अंकुश गुड़ी को कोहल करिबा. उदाहरण स्वरूप रप्तानी आमदानी क्षेत्र रे थिबा कठोर सरकारी नियंत्रण, वैदेशिक मुद्रा विनियोग क्षेत्र रे थिबा कठोर सरकार नियंत्रण एवं सरकारंकर केतेक क्षेत्र रे थिबा मन इच्छा नियंत्रण ये सब को कोहल करवा कह जाए उदारवाद. अर्थात उदारवाद उल्लेख करि थाए जे रप्तानी आमदानी क्षेत्र रे विशेष कटकणा रहिबा उचित नुहे. विदेशी विनियोग विदेशी मुद्रा विनियोग क्षेत्र रे कठोर कटकणा रहिबा उचित नुहे. सरकारी उद्योग गुड़िक जो क्षेत्र रही से क्षेत्र में बेसरकारी उद्योग गुड़ी को प्रवेश करने अनुमति. अर्थात विभिन्न क्षेत्र में शिल्पपति मान को शिल्प प्रतिष्ठा अनुमति प्रदान करने उदारवाद. तेणु उदारवाद अर्थ है विभिन्न क्षेत्र में जो सरकारी नियंत्रण गुड़िक रही सरकारी अंकुश गुड़िक रही करवा कोहल बा उड़े कहे हुकुड़ा. So liberalization means in place of strong government restrictions in the field of import and export, foreign investment, monopoly of government undertakings, to make it liberal. Okay, in the field of export and import, there will be freedoms. In the field of foreign investments, there must be freedoms. Private undertakings should be allowed to enter into different field to make business. This is known as liberalization. Okay, very good. So these are all the short questions we have discussed. Now we'll discuss objective questions. Okay, very good. बर्तमान आमे देखिया objective question. आरंभ करिबा. भारतीय संघ व्यवस्था एक आंशिक संघ व्यवस्था किए कही केसी हुए केनिथ क्लिंटन हुए. भारतीय इंडियन फेडरलिज्म इज ए क्वासी फेडरल स्टेट इज टोल्ड बाय होम केसी हुए केनिथ क्लिंटन हुए हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया. नंबर 2 भारतीय संविधान प्रणयन कमिटी क्यों मसीह प्रतिष्ठा होता 1946. Indian Constitutional Assembly was appointed, was formed in the year 1946. भारतीय संविधान प्रणयन कमिटी अध्यक्ष किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. भारत संविधान प्रणयन कमिटी अध्यक्ष किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Who was the president of Indian Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. भारतीय संविधान प्रणयन कमिटी प्रथम अधिवेशन केबे हेतिला? 9 डिसेंबर 1946. When the first meeting of Indian Constituent Assembly was held? 9 December 1946. भारतीय संविधान प्रणयन कमिटी क्यों दिन
तार संविधान संपूर्ण करथिला 26 नवेम्बर 1949 इंडियन भारत संविधान प्रणयन कमिटी संविधान संपूर्ण करथिला 26 नवेम्बर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली completed the constitution in the year 26 November 1949 आ भारत संविधान क्यों मसीह कार्य आरंभ करथिला 1950 मसीहा जनवरी 26 Indian constitution started its work from 26 January 1950 भारतीय संविधान प्रणयन कमिटी रो लिखित कमिटी रो अध्यक्ष किए दिले B.R. आंबेडकर भारत संविधान प्रणयन कमिटी रो लिखित कमिटी रो अध्यक्ष दिले B.R. आंबेडकर who was the president of drafting committee of the Indian Constitutional Assembly B.R. आंबेडकर भारत संविधान रो लिखित कमिटी रो सदस्य केते दिले सर भारतीय संविधान रो लिखित कमिटी रो सदस्य संख्या दिले सर The drafting committee of the Indian Constitutional Assembly consists of desk numbers 7. Okay. Then, जो संविधान को सहजरे परिवर्तन करा जाए ताहाको कोन कुआ जाए अनमनीय संविधान a constitution which is easy to change which is difficult to change it is rigid constitution जो संविधान को सहजरे परिवर्तन करा जाए ताको नमनीय संविधान कहा जाए a constitution which is easy to change is known as flexible constitution very good जो व्यवस्थापिका रे दुईटी सदन थाए ताको कोन कहा जाए द्वि सदन व्यवस्थापिका a legislature which consists of two houses is bicameral legislature भारतीय केंद्र व्यवस्थापिका रो उच्च सदन को कौन कहा जाए राज्यसभा भारतीय केंद्र व्यवस्थापिका रो निम्न सदन को कौन कहा जाए लोकसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज टोल्ड एज राज्यसभा द लोअर हाउस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट नोन एज लोकसभा अपर हाउस इज राज्यसभा लोअर हाउस इज लोकसभा ओके वेरी गुड केंद्र तालिका रे केतोटी क्षमता रही अछि 1900 राज्य तालिका रे केतोटी क्षमता अछि 61 जुग्म तालिका रे केतोटी क्षमता अछि 52 इंग्लिश रे यूनियन लिस्ट हैज हाउ मेनी आइटम्स 99 स्टेट लिस्ट हैज हाउ मेनी आइटम्स 61 कंट्रोल लिस्ट हैज हाउ मेनी आइटम्स 52 ओके वेरी गुड केंद्र तालिका रे की आईन प्रणयन करता है केंद्र सरकार हु मेक्स लॉ इन द यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जुग्म तालिका रे की आईन प्रणयन करता है उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार किंतु यदि उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार आईन प्रणयन करथांती कार आईन कार्यकारी होता है केंद्र सरकार इंग्लिश रे 18 हु मेक्स लॉ इन द control list central government and state government if both the central government and state government will make law in the control list whose law will prevail central law will prevail okay then legislative relationship between central and state is found in which part 11 केंद्र एवं राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क संविधान रो केउ भाग रही अछि 11 भाग एवं केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क केउ धारा मध्य सीमित केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क केउ धारा मध्य सीमित 245 रो 255 the legislative relationship between central and state covers from which article to which article 245 to 255 okay very good केंद्र राज्य मध्य थिबा
प्रशासनिक संपर्क क्यों धारा मध्य सीमित 256 रु 263 द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच आर्टिकल टू व्हिच आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 256 टू 263 ओके वेरी गुड केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन संविधान क्यों सूची रही अछि सप्तम सूची केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन क्यों सूची रही अछि छुंची नहीं सूची रही अछि सप्तम सूची द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज फाउंड इन व्हिच शेड्यूल 7th शेड्यूल ओके वेरी गुड देन अंतरराज्य नदी परिषद क्यों धारा अनुसार गठन होता है धारा 262 इंटरस्टेट रिवर काउंसिल इज फॉर्म ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल 262 अंतरराज्य परिषद क्यों धारा अनुसार गठित हुए 263 इंटरस्टेट काउंसिल इज फॉर्म बाय व्हिच आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद किए गठन करि थांती प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल इज फॉर्म बाय होम प्रेसिडेंट इंटरस्टेट रिवर काउंसिल इज फॉर्म बाय होम पार्लियामेंट अंतरराज्य नदी परिषद किए गठन करता है पार्लियामेंट क्यों धारा अनुसार सर्वभारतीय सेवा अधिकारी पद केंद्र संसद वृद्धि करिथा है धारा 312 ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल पार्लियामेंट creates one or more all India services article 312 ओके वेरी गुड आर्थिक आयोग के प्रतिष्ठा करिथा है राष्ट्रपति फाइनेंस कमिशन इज फॉर्म बाय होम प्रेसिडेंट आर्थिक आयोग सदस्य संख्या केते 5 फाइनेंस कमिशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स 5 देन क्यों धारा अनुसार भारत में आर्थिक आयोग प्रतिष्ठा होता है 280 ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल फाइनेंस कमिशन इज फॉर्म 280 क्यों धारा अनुसार केंद्र सरकार राज्य गुड़ी को प्रदान करिथांती अनुदान धारा 275 ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स एड्स टू स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 275 देशर आय हिसाब किए रक्षा करिथांती कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया सीएनजी देशर आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक देशर आय हिसाब किए रक्षा करिथांती आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक सीएनजी हु मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द कंट्री कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ इंडिया कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केउं धारा अनुसार आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक करा जायता नियुक्ति धारा 148 ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल द कंट्रोल एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 148 ओके वेरी गुड देन आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक केंद्र सरकार आय हिसाब करी कहा प्रदान करिथांती द कंट्रोल एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया आफ्टर ड्राइंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ए कॉपी ऑफ इट टू होम ओके ओके माय स्टूडेंट्स in this video we have discussed as many as 15 short notes and 35 objectives ए वीडियो रे हमें 35 टी ऑब्जेक्टिव देखिले 15 टी शॉर्ट नोट्स देखिले ओके आई थिंक माय स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द वीडियो ओके सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड यूनिट where you will find as many as 6 videos ओके ताले ए वीडियो रे हमें सेकंड यूनिट रो प्रथम विषय को हमें कर देलु समाप्त ओके थैंक यू माय स्टूडेंट्स गुड बाय टू ऑल अगेन विल बी हियर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू टू ऑल